Hello students, I hope everyone is doing well. Let's start with the today's session. In yesterday's session and day before yesterday, we have covered what is service desk, how you can start your career as an service desk, what are the roles and responsibility of an service desk analyst, correct? And after that, we have also seen what is incident life cycle, right? We have seen incident life cycle in detail in previous session, right? And then we have covered how the INC is locked, correct? And we have seen the priority as well. What is urgency? What is priority? These all things we have already covered. Now, in today's session, we are going to discuss about this SLA and the priority and many more points are there. So let's cover one by one. Okay, SLA and its priority P1, P2, P3, P4. Learn to troubleshoot common incident, improve the FCR. Now what this FCR is, and provide the secure remote support. What is this? All the terms which I have written over here, like what is SLA, what are the priorities of its, right? And what is FCR? Everything we are going to cover. Okay, so let's see. Today's agenda is to cover SLA and priority. हम आज क्या क्या देखेंगे, SLA क्या रहता है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, कैसे रहती है प्रायोरिटीज, उसका ड्यूरेशन क्या है, कॉमन इश्यूज वो हम देखेंगे, व्हाट आर द कॉमन इश्यूज, डेस्कटॉप प्लस एप्लीकेशन. Then what is FCR? FCR full form is first call resolution. Okay. Next, a remote support, tools plus safe workflow. Okay. How we are going to provide the support remotely, that we are going to see, right? And the scenarios, correct? We are going to see the scenarios. हम ऐसे कुछ scenarios देखने वाले हैं जैसे कि आप already service desk analyst की तरह think कर सकते हो वहां पे. Okay, many more scenarios I have taken. So let's start with the session. Stay tuned till the end. Okay, it is very important if you want to start your career as an service desk analyst. Okay, what is this SLA, right? First, we are going to cover what is SLA. SLA means SLA is service level agreement. This is service level agreement. Full form is service level agreement. And this agreement is between सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर. जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं वो और कस्टमर, इनके बीच में जो भी एग्रीमेंट रहता है उसको बोलते हैं SLA, दैट इज सर्विस लेवल एग्रीमेंट. अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, ये मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है. सेट्स रिस्पॉन्स एंड रिजोल्यूशन एक्सपेक्टेशन. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिस्पॉन्स एंड रिजोल्यूशन एक्सपेक्टेशन सेट करता है. नेक्स्ट, हेल्प्स टू प्रायोरिटाइज द इंसिडेंट. इंसिडेंट हम कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं वो भी हम इसमें करते हैं. इट हेल्प्स फॉर इट, राइट? नेक्स्ट, क्रिएट्स मेजरेबल सर्विस टारगेट्स. मेजरेबल सर्विस टारगेट यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं. improves the customer communication. We can improve the customers communication. Okay, let's see in detail. I hope here in this slide you would get to know about what SLA is. SLA मतलब सिंपल होता है, दैट इज सर्विस लेवल एग्रीमेंट. ये एक एग्रीमेंट रहता है सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर के बीच में. और ये क्यों जरूरी है, इसके ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. सिंपल है तो आगे बढ़ते हैं. जैसे हमने देखा था SLA में P1, P2, P3, P4 ऐसे प्रायोरिटी रहते हैं. अभी ये P1 क्या रहता है? P1 इज क्रिटिकल, राइट? यूज योर ऑर्गेनाइजेशनल्स ऑफिशियल SLA मैट्रिक्स इन रियल वर्क. अभी यहाँ पे मैंने जनरली कैसे होता है, जनरली P1 मीन्स क्रिटिकल, इट इज एन जनरल. बट
आपके कंपनी में ये जो मैट्रिक्स है वो डिफरेंट हो सकता है, राइट। आपकी कंपनी में क्रिटिकल लेवल का P1 रहेगा, हाई मतलब जो भी हो, मैट्रिक्स में वैरी कंपनी वाइज। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट P1। अगर P1 है, समझो प्रॉब्लम क्रिटिकल है, ओके, तो उसको बोलते हैं P1। और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कितना टाइम रहता है? कंप्लीट 4 आवर्स। ओके, एग्जाम्पल, मेजर आउटेज, क्रिटिकल बिजनेस सर्विस अनअवेलेबल, मेजर आउटेज इन द कंपनी, राइट। मतलब कुछ तो कंपनी में बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, राइट, मेजर आउटेज। एंड नेक्स्ट इज क्रिटिकल बिजनेस सर्विस अनअवेलेबल, हमारी कंपनी में जो भी हम बिजनेस बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, राइट, वो बिजनेस अनअवेलेबल है, राइट, क्रिटिकल बिजनेस सर्विस इज अनअवेलेबल। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसका? द P1 क्रिटिकल वाला जो भी है उसका। ओके, नेक्स्ट, अभी एज एन एनालिस्ट आप क्या करोगे? एक्नॉलेज क्विकली, जो भी प्रॉब्लम आया है, समझो मेजर आउटेज आया है, यू नीड टू एक्नॉलेज इट क्विकली। नेक्स्ट, असेस द इम्पैक्ट, आपको वो उसका इम्पैक्ट देखना है कितना हुआ है, राइट। नेक्स्ट, एस्केलेट इफ रिक्वायर्ड, अगर समझो जो भी टीम के पास आपने काम दिया है वो अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो आपको क्या करना है? वो केस में एस्केलेट, राइट। कीप स्टेक होल्डर्स अपडेटेड, अभी ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? यस, स्टेक होल्डर मतलब कस्टमर्स, राइट। स्टेक होल्डर जो हमें सर्विस, जो हमें बिजनेस देते हैं, राइट, जिनका बिजनेस हम करते हैं वो रहते हैं स्टेक होल्डर्स, करेक्ट। तो उनको अपडेट करना है कि ऐसे ऐसे आपकी एप्लीकेशन में कुछ तो इशू है, आपको उनको अपडेटेड रखना है। ओके, नेक्स्ट इज P2 हाई, यूज योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑफिशियल SLA मैट्रिक्स इन रियल वर्क। ओके, ये मैंने सारे स्लाइड्स में लिखे हैं, जस्ट टू रिमेम्बर इट। ये सारी जगह आपको काम नहीं आएगा, अगर समझो आपका कंपनी का मैट्रिक्स भी यही है, देन इट इज गुड, इट इज गुड टू गो, यू कैन यूज इट। P2 मीन्स जो भी P2 लेवल का प्रॉब्लम है तो उसका प्रायोरिटी हाई रहता है, और उस वहां पे आपको 8 से 12 घंटे का टाइम रहता है। ओके, तो अभी इसका एग्जांपल क्या है कि टीम ब्लॉक from an important application while the rest of business works। okay, जो भी बिजनेस का इंपॉर्टेंट जो भी बिजनेस का इंपॉर्टेंट टीम है, जो वो बिजनेस के समझो डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए वो एप्लीकेशन ब्लॉक हुआ है, बस उनके लिए, लेकिन बाकी लोगों के लिए चल रहा है, राइट। ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट, बिकॉज वो जो डेवलपर है उस पर काम कर रहे हैं, राइट। सो की टीम ब्लॉक्ड फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन पे वो काम कर रहे हैं उनका ब्लॉक हुआ है, तो ये एग्जाम्पल हो गया P2 का, करेक्ट। सो एनालिस्ट का क्या फोकस रहेगा यहाँ पर? चेक द अफेक्टेड यूजर, आपको चेक करना है कितने यूजर्स अफेक्टेड हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, हाउ मेनी यूजर्स आर गेटिंग अफेक्टेड, वो आपको देखना है। देन वर्क अराउंड, आपको वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं, राइट, जो भी स्टेप रहेगा उसका, राइट। देन बिजनेस डेडलाइन, आपकी बिजनेस डेडलाइन क्या है वो देखनी है। एस्केलेट इफ नीडेड, escalation is important if someone is not able to solve that issue which you have raised in the application, then you need to do the escalation। okay, next is P3, इसका जो प्रायोरिटी है वो मीडियम रहता है, राइट। अगेन यहाँ पे मैंने P3 मीडियम लिखा है, मतलब आपकी कंपनी में भी P3 मतलब मीडियम ही रहेगा, नॉट नेसेसरीली बट जनरली होता है। ओके, 2 बिजनेस डेज, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कितना टाइम है? कंप्लीट 2 बिजनेस डेज। ओके, सो इसका एग्जांपल क्या है? सिंगल यूजर एप्लीकेशन इशू, नॉट क्रिटिकल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, और इशू विथ वर्क अराउंड। सिंगल यूजर एप्लीकेशन इशू मतलब एक ही यूजर है जो इम्पैक्टेड है, समझो एक ही यूजर है, उसका लॉगिन नहीं चल रहा है, ओके, जो भी उसको कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन इम्पैक्टेड यूजर एक ही है, मतलब ये क्रिटिकल इशू नहीं है, तो इसका प्रायोरिटी क्या है? मीडियम, राइट। नॉन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम,
करेक्ट। ये एग्जाम्पल है P3 का। आप जब भी इंटरव्यूअर आपको पूछेंगे हाउ मेनी प्रायोरिटीज आर देयर, राइट, सो यू नीड टू गिव द आंसर P1, P2, P3. In my organization we have P1, P2, P3 and P4. Likewise, you need to give the answers: high priority, critical, medium and low priority. Everything you need to answer step by step. Okay. अभी एनालिस्ट का फोकस क्या रहेगा? कंफर्म द इम्पैक्ट। यहाँ पर तो लिखा है कि सिंगल यूजर इम्पैक्ट हो रहा है, फिर भी आपको वो इम्पैक्ट कंफर्म करना है, फिर प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करना है, इफ पॉसिबल देन डॉक्यूमेंट करना है उसका, एंड लास्टली रिजॉल्व विद इन द टारगेट। जो भी टारगेट दिया है उसके अंदर आपको रिजॉल्व करना है। जैसे P3 के लिए 2 बिजनेस डेज है, राइट, तो आपको वो जो प्रॉब्लम है आपको 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट P4 मीन्स लो प्रायोरिटी। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत टाइम है, दैट इज 5 बिजनेस डेज। करेक्ट। इसका एग्जाम्पल है माइनर इनकन्वीनियंस, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट और लो इम्पैक्ट इशू। ऐसा कौन सा भी इशू है जिसका इम्पैक्ट बहुत ही कम है? इंफॉर्मेशन चाहिए किसी को, राइट, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट एंड द माइनर इनकन्वीनियंस। ये सब एग्जांपल्स है किसके? P4 के। P4 दैट इज लो प्रायोरिटी। ओके। तो एज एन एनालिस्ट आपका फोकस क्या रहेगा? कंफर्म द स्कोप। आपको स्कोप कंफर्म करना है, देन प्रोवाइड द सॉल्यूशन, राइट। जो भी सॉल्यूशन रहेगा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। अगर समझो कोई आपको इंफॉर्मेशन मांग रहा है, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो आपको प्रोवाइड करना है। करेक्ट। देन कम्युनिकेट द टारगेट। ओके। नाउ विल सी क्विक रेफरेंसेस ऑफ द प्रायोरिटीज। ओके, इंपॉर्टेंट है ये। P1, P2, P3, P4, ये these all are priorities. Then ये इसके टारगेट है, मतलब आपको कितने कितने टाइम में वो सॉल्व करना है, राइट। ये ऑलरेडी हमने देखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट बनाया है स्लाइड जिसमें सब एक जगह पर आ सकता है, राइट। प्रायोरिटी P1 है तो उसका टारगेट है 4 आवर्स, और इम्पैक्ट क्या है उसका? क्रिटिकल, एग्जाम्पल मेजर आउटेज। ओके। और P2 है तो उसका 8 to 12 hours you have the time, and then impact is also high, की टीम ब्लॉक्ड। ये सारे एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी देखे हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया है। P3 2 business days आर देयर, मीडियम इम्पैक्ट है इसका, एंड सिंगल यूजर इशू इज देयर। ओके। एंड P4 आपके पास कितना टाइम रहता है? 5 business days, and typical impact is low. Example, minor issue. Okay, this is important guys. ये एक स्लाइड के with the help of this single slide you would get many more information, right? आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा information मिल रही है एक ही स्लाइड के ऊपर। ओके, सो ये important है। ओके, इंटरव्यू में भी पूछते हैं ये क्वेश्चन। ओके, priority is generally based on the impact and the urgency. Again, next, अभी कॉमन डेस्कटॉप एंड एप्लीकेशन इश्यूज क्या होते हैं ये अभी हम देखेंगे। ओके, सो कॉमन डेस्कटॉप एंड एप्लीकेशन इश्यूज। फर्स्ट क्या है? पासवर्ड रिसेट और अकाउंट लॉकआउट। किसी का पासवर्ड रिसेट करना है, ये इशू आते हैं, इट इज कॉमन इशू, राइट। नेक्स्ट इज प्रिंटर कनेक्टिविटी और प्रिंट क्यू, राइट। प्रिंटर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ये भी इशू आता है, कॉमन इशू है ये। ओके, एज एन सर्विस डेस्क एनालिस्ट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस कॉमन इशू, राइट। नेक्स्ट इज इंटरनेट कनेक्टिविटी, राइट। बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम आते हैं कंपनी में, बहुत सारे एम्प्लॉयज को आता है, जैसे कि समझो वो उनके पास नेटवर्क ही नहीं चल रहा है, तो वो आप कैसे सॉल्व करोगे, राइट। ये कॉमन इश्यूज है। नेक्स्ट इज स्लो कंप्यूटर और द परफॉर्मेंस, आउटलुक और ईमेल इश्यूज, ईमेल वर्क नहीं कर रहा है, राइट। शेयर्ड ड्राइव और एक्सेस प्रॉब्लम, किसी को एक्सेस नहीं मिल पा रहा है उनके प्रोजेक्ट के ऊपर, राइट। एप्लीकेशन लॉगिन और परमिशन, एप्लीकेशन का लॉगिन एंड परमिशन का इशू आ रहा है। ओके,
एप्लीकेशन एरर और क्रैश, समझो एप्लीकेशन क्रैश हो गया, एप्लीकेशन में कुछ तो एरर आया है, ये सब क्या है, कॉमन डेस्कटॉप एप्लीकेशन इश्यूज। समझो आपको इंटरव्यू में पूछते हैं what are the common desktop and application issues you have faced in your company, so आपको ये answers देने हैं, correct? These are the answer for those kind of questions, okay? अभी हम देखेंगे एक रियल टाइम एग्जांपल ओवर हियर, ओके? कॉमन इशू क्या आता है, कॉमन इशू पासवर्ड रिसेट और अकाउंट लॉकआउट। अभी ये यूजर है, ये अभी क्या बोल रहा है, आई कांट लॉग इन, आई थिंक माई अकाउंट इज लॉक्ड, राइट? ये यूजर का एक इशू है, एक प्रॉब्लम है। तो कैसे अभी हम सॉल्व करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एज एन सर्विस एनालिस्ट। एनालिस्ट स्टेप्स क्या होगा इसमें, वेरीफाई द आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। नेक्स्ट इज चेक द अकाउंट स्टेटस, उसका जो भी अकाउंट है उसका स्टेटस चेक करना है, वो पेंडिंग है, क्रिएटेड है, जो भी है वो आपको चेक करना है। नेक्स्ट, फॉलो अप्रूव्ड रिसेट प्रोसीजर, जो भी आपकी कंपनी का रिसेट प्रोसीजर है, पासवर्ड रिसेट करने का जो भी प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है। देन आस्क यूजर टू टेस्ट द लॉगिन, जो भी आपने वो प्रोसीजर फॉलो करके प्रॉब्लम सॉल्व किया, देन आपको यूजर को बताना है कि यू कैन टेस्ट योर लॉगिन, राइट? देन लास्टली डॉक्यूमेंट द टिकट, राइट? जो भी टिकट आपने किया है उसका डॉक्यूमेंट, उसका ट्रेस आपको रखना है। ये रहेगा एनालिस्ट के स्टेप्स। सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है। दिस इज रियल टाइम एग्जाम्पल गाइस, रियल टाइम एग्जाम्पल, ओके? This is important. Security first. Never bypass identity verification just to save the time. Right? ये पर्टिकुलर यूजर का आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना ही है, तभी आगे जाना है। समझो टाइम बचाने के लिए आप ये नहीं करते हो, इट इज नॉट गुड, ओके? कॉमन इशू प्रिंटर कनेक्टिविटी, राइट? प्रिंटर कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम इशू आते हैं, जैसे कि पावर और फिजिकल कनेक्शन इज देयर, राइट? प्रॉब्लम। नेक्स्ट, करेक्ट नेटवर्क और वाईफाई, राइट? वाईफाई नहीं चल रहा है, नेटवर्क करेक्ट नहीं है। कैन द पीसी रीच द प्रिंटर, आपका पीसी प्रिंटर पर मतलब उसका रीच है क्या? करेक्ट द प्रिंटर सिलेक्टेड, जो भी प्रिंटर सिलेक्ट किया है प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट, वो आपको करेक्ट करना होगा। चेक द प्रिंट क्यू, क्यू में कितने डॉक्यूमेंट है प्रिंट के लिए, वो भी आपको चेक करने हैं। देन टेस्ट पेज और अप्रूव द सर्विस रिस्टार्ट, ये सारे स्टेप्स है। With these steps, you can solve the printer connectivity issue. Simple है. So let's go ahead. Sorry. Universal troubleshooting flow, right? Universal troubleshooting flow. ये again ये universal है, मतलब आपकी कंपनी में भी यही रहेगा ऐसा नहीं है, but generally यही follow होता है। First is identify what exactly is happening. आपको आइडेंटिफाई करना है एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट रिप्रोड्यूस, फिर से आपको वो रिप्रोड्यूस करके देखना है। समझो आपके पास कोई यूजर आता है, वो बोल रहा है कि मेरा एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, तो आपको वो रिप्रोड्यूस करके देखना है कि सच में नहीं चल रहा है क्या, उसको बोलते हैं रिप्रोड्यूस। देन चेक बेसिक्स, देन आपको बेसिक्स चेक करने हैं, पावर है क्या, नेटवर्क अच्छा है क्या, लॉगिन में जो भी क्रेडेंशियल्स उसने डाले करेक्ट है क्या, सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम है क्या। यू नीड टू चेक दिस बेसिक्स, ये आपको चेक करने हैं बेसिक्स। देन अप्लाई फिक्स, अप्रूव्ड केबी और प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर रहेगा आपका वो आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट वेरिफिकेशन, कंफर्म सर्विस वर्क्स, अभी यहाँ पे जो भी इशू है वो फिक्स हो चुका है, देन आप आगे जाके क्या करोगे, वेरीफाई करोगे कि वो प्रॉब्लम सच में सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? देन लास्टली डॉक्यूमेंट करना है, उसका कॉज क्या था, आपने फिक्स किया, फिक्स करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये सब डॉक्यूमेंट में आता है, राइट? यूनिवर्सल ट्रबल शूटिंग फ्लो इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है क्वेश्चन। Now we are going to moving ahead with first call resolution, right?
ये क्या रहता है? फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन मतलब आपको नाम से ही थोड़ा आइडिया आया होगा, करेक्ट? FCR मीन्स रिजॉल्विंग द यूजर्स इशू ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉन्टैक्ट वेन एवर पॉसिबल। समझो यूजर को कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आपने एज एन एनालिस्ट फर्स्ट कॉल में ही सॉल्व किया, उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन। सिंपल है, आसान भाषा में ऐसे करना है। एग्जाम्पल, यूजर कॉल्स, आई एम लॉकआउट। देन आप क्या करोगे? वेरीफाई द आइडेंटिटी, सेट द पासवर्ड, यूजर लॉगिन्स, एंड देन आप डॉक्यूमेंट करोगे, करेक्ट? ये होगा एग्जाम्पल। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ FCR, फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन। Whenever interviewer ask you what is the example of this, you can pick this example out, okay? Then इसके बेनिफिट्स क्या है? बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर समझो कस्टमर आपके पास आता है और आपने उसका इशू फर्स्ट कॉल में ही रिजॉल्व किया, ऑब्वियसली दैट कस्टमर वुड बी वेरी हैप्पी, करेक्ट? सो बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, फास्टर रिजोल्यूशन, fewer repeat contacts and lower backlog। बैकलॉग मतलब समझो आपने टिकट रेज किया है लेकिन वो सॉल्व नहीं हुआ है तो वो बैकलॉग में चला जाता है, मतलब पेंडिंग वर्क यू कैन कह सकते हो, राइट? आप बोल सकते हो पेंडिंग, करेक्ट? सो इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन। अगेन यू आर नॉट गोइंग टू फोर्स इट, आपको फोर्स नहीं करना है कि मुझे इशू फर्स्ट कॉल में ही रिजॉल्व करना है। नॉट नेसेसरी ऑल द इशू विल गेट सॉल्व इन फर्स्ट कॉल, करेक्ट? You need to understand it, you need to identify the issue, correct? Many more steps you need to follow. If possible, like small problems you can solve on first call, correct? ये सिंपल है एग्जाम्पल फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन। समझो आपके पास 100 टोटल कॉन्टैक्ट्स है, उसमें से आप 80 टिकट्स जो भी है, 100 टिकट्स में से 80 टिकट्स आपने सॉल्व किए फर्स्ट कॉल में, ओके? सो ये ऐसे रहता है, मतलब 80% आपका रेट है फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन का। सिंपल है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट, रिमोट टूल्स, रिमोट सपोर्ट टूल्स। अभी कौन से रिमोट सपोर्ट टूल्स यूज होते हैं ये हम देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप, रिमोटली कैसे आप सपोर्ट दे पा रहे हो, राइट? तो उसके लिए आप यूज करते हो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स। ऑब्वियसली यू नीड टू यूज डिफरेंट टूल्स। समझो कोई यूजर है, समझो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, राइट? तो कैसे आप देख पाओगे कि यूजर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, राइट? तो आप ये वाले सब एप्लीकेशंस यूज करते हो टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, राइट? तो उसमें कौन से टूल्स आते हैं? माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप, remote connection to supported Windows machines, right? Windows Quick Assist, one tool is there. Remote assistance for Windows user, okay? Teamweaver, remote support or access. Anydesk, remote desktop support। बहुत लोगों को पता होगा ये Anydesk एप्लीकेशन, करेक्ट? टीम व्यूअर भी पता होगा, राइट? एंटरप्राइज RMM एंड पॉइंट टूल्स। अभी बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे टूल्स है अभी मार्केट में। सो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी यूज होता है टूल वो आप यूज करेंगे टू प्रोवाइड रिमोट सपोर्ट, करेक्ट? सिंपल है, रिमोट सपोर्ट टूल्स मतलब जो भी आप सपोर्ट प्रोवाइड करोगे रिमोटली, वो प्रोवाइड करने के लिए जो भी आप टूल यूज करोगे वो यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हैं, ओके? तो समझो रिमोट सपोर्ट का वर्कफ्लो कैसे रहता है। सेफ वर्कफ्लो इज देयर। फर्स्ट आस्क परमिशन और अप्रूव्ड एक्सेस, पहले आप पूछोगे कि परमिशन है क्या। नेक्स्ट वेरिफिकेशन, आइडेंटिफाई प्लस डिवाइस, आपका मतलब आपका डिवाइस और वो यूजर का डिवाइस, इसका आइडेंटिफिकेशन होगा, करेक्ट? वेरिफिकेशन, देन कनेक्ट, अप्रूव्ड रिमोट टूल, जो भी अप्रूव्ड रिमोट टूल रहेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो आप यूज करके कनेक्ट करोगे। देन एक्सप्लेन व्हाट यू चेक, तो आप एक्सप्लेन करोगे कि आपने क्या चेक किया, राइट? मतलब उसको ही बोलते हैं डायग्नोस, राइट? डायग्नोसिस। देन फिक्स, ऑथराइज चेंजेस ओनली, ओके? डिस्कनेक्ट, एंड द सेशन प्लस डॉक्यूमेंट, राइट? नेवर आस्क यूजर टू शेयर द पासवर्ड unnecessarily, नेवर bypass the access control,
जो भी यूजर आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है, राइट, अननेसेसरीली उसको ऐसे नहीं बोलना है कि प्लीज शेयर द पासवर्ड विथ मी, ऐसे unnecessarily. In some conditions you need the password, at that time you can take, but unnecessarily you are not going to ask the password. Okay, यहाँ पे मैंने मिनी सिनेरियो लिया है, अच्छे से चेक करो। अभी हम देखेंगे व्हाट टू डू। यूजर बोल रहा है माय पासवर्ड इज नॉट वर्किंग, मेरा पासवर्ड नहीं चल रहा है, एंड आई हैव मीटिंग इन 20 मिनट्स, एंड मेरी मीटिंग है अभी विद इन 20 मिनट्स, राइट, अभी 20 मिनट्स में मेरा मीटिंग है, लेकिन मेरा पासवर्ड ही नहीं वर्क कर रहा है। तो ये एक रियल टाइम सिनेरियो है, इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली केस में एज एन एनालिस्ट आप क्या करोगे, आपके पास 20 मिनट्स ही बचे हैं। सो फर्स्ट option is there, reset immediately without verification. B option is there, verify identity, check account, approved reset, and test login. C is ask the user to share their password. So as an analyst, what you would do? Yes, what you think, what you would do in this scenario? Okay, you need to comment me the answer of this mini scenario in the comment section. Very important, go through the lecture, go through the previous lectures as well, so that you would be able to solve this question very easily. Okay, I need your answer in the comment, A, B or C. Okay, these are some questions, सर्विस डेस्क इंटरव्यू क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आज हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर क्वेश्चंस कौन से आएंगे वो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किया है। फर्स्ट इज व्हाट इज एसएलए, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P1 एंड P4, हमने देखा है, करेक्ट, एसएलए पढ़ा है हमने, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, राइट, इट इज एन सर्विस लेवल एग्रीमेंट, राइट। How do you decide priority? What is FCR? First call resolution. Give the example of FCR. समझो आपको इंटरव्यूअर ने पूछा है what is FCR? At that time आपको FCR का डेफिनेशन बोलना है, करेक्ट। अगर वो बोलता है आपको कि आप एग्जाम्पल दे सकते हो, तभी आपको एग्जाम्पल देना है। ओके, अननेसेसरीली एग्जाम्पल पहले ही नहीं देना है। ओके, हाउ वुड यू ट्रबल शूट अ प्रिंटर, प्रिंटर को ट्रबल शूट कैसे करोगे, जो हमने स्टेप्स देखे हैं, राइट, वो आप बोल सकते हो यहाँ पे। व्हाट स्टेप्स डू यू फॉलो बिफोर रिमोट एक्सेस, रिमोट एक्सेस के लिए आप कौन से स्टेप करते हो, राइट, ये भी हमने देखा है। व्हेन वुड यू एस्केलेट द टिकट, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एस्केलेशन इज इम्पोर्टेंट, करेक्ट। अभी ये लेक्चर से आपको टेक होम पॉइंट्स क्या है वो मैंने ये वाले स्लाइड में ऐड किए हैं। SLA, नॉलेज द टारगेट एंड कम्युनिकेट इट। P1 टू P4 ये हमने देखे हैं प्रायोरिटीज। कॉमन इश्यूज क्या क्या है वो हमने पढ़ा है। यूज स्ट्रक्चर्ड ट्रबल शूटिंग। देन FCR, रिजॉल्व ऑन फर्स्ट कॉन्टैक्ट व्हेन अप्रोप्रिएट, राइट। रिमोट सपोर्ट, रिमोट सपोर्ट के लिए पहले आपको परमिशन लेनी है, सिक्योरिटी देखनी है, एंड देन लास्टली उसका डॉक्यूमेंटेशन देखना है। इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आज के सेशन में हमने कवर किया है। आपको मुझे आंसर देना है मिनी सिनेरियो का, ये सिनेरियो का आंसर मुझे चाहिए। व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कमेंट इन द सेशन, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर आपको देना है। ओके, सिंपल है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। In coming sessions, we are going to take many more real-time scenario as an service desk analyst. Okay? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है जो हमने देखा आज के सेशन में? Yes. So here we are going to stop today. Okay? We'll meet in further sessions. Okay? अगर समझो आपको कुछ भी डाउट आता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। We can connect one to one as well. Okay, whatever your doubt is, we are going to connect. Okay, सिंपल है गाइस। अगर आप करियर के लिए देखते हो, ये जो सर्विस डेस्क एनालिस्ट का जॉब है अच्छा है, यू कैन टेक दिस एंड एंटर इनटू द IT. ओके,
Okay. Thank you guys. Thank you.